شروع تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ۔ ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لاہور پوچھتا ہے۔ ناظرین، اس لمحے جب یہ پروگرام ریکارڈ کیا جا رہا ہے تو پورے وطن عزیز کے مسلمانوں کی طرح لاہور میں موجود پاکستانیوں اور جہاں پر بسنے والے مسلمانوں کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ بدقسمتی کا معاملہ یہ ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی، وہ ہستی جس کے وجود کی وجہ سے اس کائنات کا وجود ہے، ہم بحیثیت مسلمان اگر اپنے آپ کو باعزت سمجھتے ہیں تو صرف اور صرف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ بدقسمتی ایسی ہے کہ آج اس لاہور میں، اس وطن عزیز میں ایک ایسا معاملہ چل رہا ہے جس میں بدقسمتی کے ساتھ سمجھ نہیں پا رہے کہ حق پر کون ہے اور ناحق کون ہے، لیکن ہمیں آلو، پیاز، سبزی، ٹماٹر، چینی، گھی کے دام پتہ کرنے کا ہے۔ پوری قوم کو ایک ایسے معاملے میں مصروف رکھا جا رہا ہے کہ جناب 1200، 1500، 1800 لوگ کرسیاں لگا کر کہیں قطاریں بنا کر خواتین، مرد چینی لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کوئی گھی کی لائن میں لگا ہوا ہے تو کسی کو آٹا نایاب نظر آ رہا ہے اور اس کو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے آٹا خریدنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اللہ کی طرف سے روزوں کی تکمیل کے لیے obviously آگے چلنا ہے۔ تو آج ہم بھی آٹا، چینی، روٹی کے دام بھاؤ پتہ کریں گے، کیونکہ اگر دوسری جانب بات کریں گے تو تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا۔ میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ ہم خوش قسمت ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے پر، لیکن میری اللہ تعالیٰ سے دستبستہ درخواست ہے اور دعا ہے کہ وہ محبوب آپ کا ہے، ہم کمزور ہیں، اس محبوب کی تکریم کو آپ نے سلامت رکھنا ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم بحیثیت پاکستانی تفریق کا شکار ہو گئے ہیں۔ آج لاہور کی سڑکوں پر ایک بدقسمتی کا معاملہ چل رہا ہے، تو آپ اپنا کام کریں، ہم آلو، سبزی، چینی، دال کا ریٹ پتہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں حاکم وقت نے اس کام پر لگا رکھا ہے۔ سمجھتے ہیں کیا چل رہا ہے؟ ناظرین، گلشن رابی کے رمضان بازار میں موجود ہیں۔ اگر میں اپنے بائیں جانب دکھاؤں تو یہ ایک طویل قطار ہے کرسیوں کی، جس میں کوئی 1200، 1800، 2000 بندہ، خواتین، مرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ پچھلے کئی گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ 4-6 کاؤنٹرز، غالباً 1، 2، 3، 4 کاؤنٹرز لگائے گئے جہاں سے ان کو چینی ملے گی۔ جب میں یہاں پر آیا تو مجھے لگا کہ شاید وزیر اعلیٰ پنجاب نے کوئی پلاٹس اناؤنس کر رکھے جس کے لیے عام لوگوں کو کرسیاں دے کر بٹھایا گیا ہے، اور 4 شاہی ملازم سامنے بیٹھے ہوئے جن کا کام دستخط کرنے کے بعد وہ جائیدادیں غربا کے نام کرنا ہے۔ لیکن یہ قریب آنے کے بعد پتا چلا کہ یہ میرے جیسے بدقسمت پاکستانی ہیں جن کو چینی کی قطار میں بٹھایا ہوا ہے کہ اگر میٹھا کھانا ہے تو 3-4 گھنٹے روزے کی حالت میں خوار ہونا پڑے گا، شاید افطاری میں 2 کلو چینی لے جانے کی اجازت مل جائے، اور اگر نہیں بیٹھو گے تو جاؤ باہر لوٹ مار کے بازار میں سے جا کے چینی خریدو۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس انفورسمنٹ نہیں ہے۔ ہم نے وعدہ تبدیلی کا کیا تھا، ہم نے وعدہ انصاف کا کیا تھا، لیکن سانو نہیں پتا کہ سرکاری ملازم تو کم کیویں لائیدا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ جو سرکاری ملازمین تنخواہ دار نوکر ہیں اس ریاست کے، ان کو کیسے کام پر لانا ہے اور باہر چور بازاری کا جو بازار چل رہا ہے اس کو کیسے بند کروانا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں میٹھا کھانا تو ایتھے آ کے بیٹھو، نہیں تو باہر جا کے ذلیل و خوار ہو۔ السلام علیکم جی، کیا لینے آئے تھے بھائی صاحب؟ گھی لینے آئے تھے۔ ملا؟ نہیں ملا۔ کتنی دیر ہو گئی بازار میں؟ پورا 1.5 گھنٹہ ہو گیا، مجھے کہیں سٹار نہیں نظر آ رہا گھی والا۔ 170 روپے کا پیک گورنمنٹ نے لگا کے رکھا ہوا ہے، ملا ہوا نہیں ہے، مل نہیں رہا کہیں بھی، ہے ہی نہیں۔ کیا جواب کیا دے رہے ہیں؟ ہم گورنمنٹ کو چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس میں نہیں ہے حکومت کرنا تو چھوڑ دیں۔ نہیں چھوڑیں گے تو نہیں، انہوں نے بڑی مشکل سے لی ہے۔ کیوں چھوڑ دیں؟ مگر اس طرح لائنوں میں نہ ختم ہونے والی لائنیں جو ہیں سر، یہ آپ کے ہمارے نصیب ہے۔ ایک منٹ میری بات، چھوٹی سی بات، آپ کے ہمارے نصیب ہے۔ چھوٹی سی گزارش سن لیں۔ آٹا لینے کے لیے پہلے لائن میں لگے، دوپہر تک پھر چینی لینے کے لیے لائن میں لگے، پھر گھی لائن میں لگے، کمائیں گے کس ٹائم؟ مجھے یہ بتائیں۔ جو
रेट यहाँ पे मिल रहा है 250 रुपए घी मिल रहा है, और ये जो बाजार में भी वही मिल रहा है। केचप जो यहाँ पे मिल रहा है तो फिर वो सस्ता घी कहाँ पे है? 120 रुपए जो लगा हुआ है, ये अपना क्या खजूर है 160 रुपए, वो बाहर भी इतने में लगी 120 रुपए। यहाँ केला लगा हुआ है, वो बाहर भी वही। केला तो जाहिर है, मुझे समझ आ रही है आप क्या कह रहे हैं। वो घी का कहाँ 170 वाला? वही तो मैं तलाश कर किसी से पूछेंगे, किसी से बात 170 नहीं मिला। ये दावे किस बात के? चीनी वालियां है 15-20 मिनट के बाद एक बंदे को देने ने, फिर पता नहीं की लिखना शुरू कर देने ने, पता नहीं नाम वल्दी लिखता है की लिखता है, वो 15-20 मिनट लिखता रहता है। 15 मिनट बाद अगले बंदे की बारी। हाँ जी। कम कर लेते शायद, आप ज्यादा करें 5-7 कर लेते। 15 मिनट बाद क्या लेने आए थे? मैं सर यहाँ से चीनी लेने के लिए आया हूँ। तो बैठे नहीं आप इस सर बैठा के थक गया हूँ, अभी बाहर निकला हूँ जरा थोड़ा सा अपना बहुत। तो कुर्सी कोई और मान लेगा। कोई बात नहीं, फिर क्या करें, चीनी के बगैर ये क्या चल रहा है? चीनी भी नहीं हो रहा है इस दौर में, क्या होना है? कल गरीब आदमी उसने कहा रहने नहीं देना तो नहीं रहेगा। जो चीजें यहाँ से मिल रही वो उसी रेट से बाहर मिल रही, फायदा तो कोई भी नहीं हुआ। आटे चीनी में मसरूफ करके हम बाहर कहानी डाली बैठे। चीनी भी हमारी अपनी है, आटा भी हमारा अपना है, सब कुछ हमारे पास अपना है, गोदामें बड़े बड़े हैं, मगर ये गवर्नमेंट के बस में नहीं है कि हम इनसे निकलवा सके। कौन सी माफी है? बेबस कीड़े ने जैसे बेबस है पूरी रियासत बेबस है ना, ये जो हजारों के हिसाब से गोदामों में चीनी पड़ी हुई है, नहीं पड़ी। अच्छा, वैसे एक मजे की बात है कि जब रियासत को अपनी ताकत इस्तेमाल करनी होती है ना, तो आज लाहौर की सड़कें देखें, आपको पता चल जाएगा कि रियासत कितनी तगड़ी है, पूरे दम के साथ मौजूद है। लेकिन जब माफियाज की बारी आती है तो वजीर आजम साहब कहने लगते हैं कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता। हैरत और अफसोस की बात है कि यार आप वजीर आजम पाकिस्तान है और रमजानुल मुबारक के इस मुकद्दस महीने में आम आदमी ख्वार हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये चल क्या रहा है सर? ये घी मिल नहीं रहा, चीनी की जो 1200-1500 बंदा यहाँ पे अगर ये घी लाएंगे, कोरोना का कोई हिसाब किताब नहीं है। आपके सामने है, देखें कोरोना किसको ऐसे खड़े हुए हम साथ खड़े हुए। सर कहीं कोई बंदा है ही नहीं ना अमल दरामद के हवाले से। बिल्कुल कुछ भी नहीं है यहाँ। ये आप मुझे बताएं ना, ये चीनी की एक कतार जो है 1500 से 2000 बंदे की, बिल्कुल है। इसमें कोरोना के SOPs कैसे हो सकते हैं फॉलो? ये इतना खुला बाजार है, क्या होगा यहाँ पे? हमें तो घी मिला आपको कहीं से? जी नहीं, घी बिल्कुल नहीं है यहाँ। भाईजान घी है? किया भाई, झूठ घी है? बोलो, मैंने पता ही नहीं किया। पता नहीं किया, मैंने आपको कहा झूठ बोले। मैं इसीलिए आप लोगों का कौम का मसला ये है कि हम फौरी तौर पर समझते हैं कि हम शायद झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैंने कहा मैंने घी है कहीं यहाँ पे? घी है? ओ भाई घी है नवाज शरीफ में, छोड़ो। नहीं है। अच्छा तो नवाज अगर यहाँ अनफॉर्चुनेट। और ये रमजान बाजार है, मुझे समझ नहीं आती कि कैसी नौसरबाजी आम आदमी के साथ चल रही, कैसे मामला चल रहे। मैं आपको चीनी की कतार के चंद लोगों की गुफ्तगू सुनाता हूँ और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कब से वो यहाँ पर मौजूद हैं और मकसद क्या है कि 2 पैकेट चीनी लेना और उसका नतीजा क्या निकलता है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर, कैसे हैं? अब तो माशाल्लाह आपकी बारी आ गई। मेरे ख्याल से ये 3-4 बंदों के बाद आपकी बारी आ गई। कुर्सी की एक पूरी रो काट के आए, कितनी देर होगी बैठे? घंटे से ऊपर हो गया। घंटे से ऊपर ऐसे ही बैठे? ऐसे बैठे, कोई पूछने वाला नहीं? कोई नहीं। तो किस टाइम आए थे? घर क्या बता के आए थे कि आज मैं चीनी लेने चला, काम करने चला? चीनी ले चले, काम शाम आज कोई नहीं? कुछ नहीं आई, एक रोजा रखा, चीनी ले ली। चीनी ले ली, कोई घी लेना पड़ेगा तो वो तो इधर मिल नहीं वो भी रहा। मिल गया। आटे की जरूरत पड़ गई, फिर लाइन में बैठे हाँ हैं। जी बिल्कुल, आज भी आता। हो क्या रहा है? वैसे भी हार्ट पेशेंट हूँ मैं तो। अल्लाह 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 अल्लाह, यानी लाइन में बैठना है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई साहब कितनी देर से बैठे हैं? 3 बजे से अभी तक बैठे हैं, 4 बजे 3 बजे से भाईजान 4:45 हो रहे हैं। 4:45 इतने टाइम से खड़े हुए और इधर चीनी के चक्कर में ही। चीनी के कभी कहते पीछे जाओ, कभी कहते आगे आ जाओ। कितने पैसे लेके आए हो चीनी के लिए? चीनी के लिए आप पता नहीं किलो कितने का दे रहे हैं, अब ये तो 2 पूछे। किलो का पैकेट 2 किलो देंगे ना आपको? 300 कुछ का नहीं 130 का देंगे। 130 का। 130 का है जी 2 किलो भाईजान। जी भाईजान। इधर आए ना, बात तो सुनिए सलीम साहब, नाराज है क्या? नहीं सर, आप क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। एक बंदे को तकरीबन कितना टाइम लग रहा है? सर ये तो
पोजीशन के हिसाब से चल रहा है, बाकी पोजीशन के इंतजामिया हिसाब बिल्कुल अच्छी है, इंतजामिया बिल्कुल ठीक कर रही है, मगर आवाम हमारे सुनती नहीं है। अच्छा, तो आप भी एक मिनट ठहर जाना यार सलीम जी सर, जी साहब। सर। चीनी आप लोगों ने जब घर के लिए लेनी होती है तो आप लोग भी ऑब्वियसली यही से लेते हैं। ओहो, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, घर में चीनी बाहर से खरीदते हैं? बाहर से ही खरीद रहे हैं। कैसी बात है कि जो बंदा कुएं पे खड़ा हुआ है उन्हें पानी बाहरों लेना पै रहा है, उसको उस कुएं का पानी नसीब नहीं हो रहा। वजह क्या है कि या तो फिर 2 नंबरी के साथ लोगे, नहीं तो अगर 1 नंबर तरीके से लेना है तो कोई 2-3 घंटे आपको यहाँ पर बैठना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप खुशकिस्मत आदमी, बड़ी मुबारक हो माशाल्लाह। 1.5 घंटे के बाद मिली है। बड़ी मुबारक हो, आपको 2 किलो चीनी मिल गई है। 1.5 घंटे के बाद। ये क्या हो रहा है भाईजान? आपने इस मुल्क में ऑब्वियसली एक लंबा अरसा देखा, कभी ऐसा हुआ है? कभी ऐसा नहीं हुआ, इसकी हुकूमत भी ऐसे हो रहा है। पहले तो कभी ऐसे नहीं हुआ था, पहले आराम से हर चीज मिल जाती थी। 70 की दहाई में चीनी की लाइनें दुकानों लगती से थी। मिल सकती थी, अब तो इधर आके लेने हुए 1.5-2 घंटे खड़ा होना पड़ता है। अब लेकिन दावा तो ये है कि जनाब हम जैसी परफॉर्मेंस है ही किसी की नहीं। ये तो जब से आए हैं एक तरह का काम नहीं किया। ये सही कह रहे, नहीं है जैसी परफॉर्मेंस 70 साल में किसी की नहीं होगी। लेकिन सर मुझे बिल्कुल सही समझ कह नहीं रही है। आती कि गवर्नमेंट को फर्क भी नहीं पड़ता। ये ख्वार हो गए, यहाँ पर आपने कोई मिनिस्टर देखा, कोई बंदा देखा कि बाजारों में फिर रहा हो, कोई देख रहा हो, कोई सरकारी मुलाजिम। ये लाइनों में लगना है और छितर भी बढ़ने हैं, फिर चीनी देनी है, पैसे भी देने, छितर भी खाने, फिर चीनी देनी है। इन्होंने होना ये है, अब ये बाकी रह गया बस। मार्केट में चीनी किसी के पास नहीं है, चीनी 110 रुपए भी नहीं है और चीनी। भाईजान वो जो बंदा उन्हें कहता है ना कि चीनी नहीं है, उसको उठा के ले जाते हैं, वो कहाँ से घर पे फिर आप और मैं चलते हैं वापस। क्या करें सर, क्या करें? हम तो इसीलिए आए हैं कि शायद किसी को फर्क पड़ जाए। कोई फर्क नहीं उम्मीद है। पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बाल सफेद हो गए। जी, जी। कई दौर देखे, ऐसा भी कोई देखा है? और कुछ बाल तो मेरे यहाँ चीनी के धक्के खाते हुए सफेद हो गए लाइन में अल्लाह, लग लग। 2 दिन पहले आया तो ऐसे ही खड़ा रहा तो कुछ नहीं मिला लाइन में। आखिरकार मैं फिर वापस हो गया। आज फिर मायूस होकर जा रहे हैं। आज भी नहीं मिली? नहीं, बस लंबी लाइन है जी, वहाँ से बस क्या करें, निकल के आ गए, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही है, धक्के खा के जा रहे हैं। भाईजान अस्सलाम, बेटे अस्सलाम वालेकुम। क्या लेने आए हो? चीनी लेने आए हैं, काफी टाइम हो आपकी गया। तो लाइन में जगह नहीं मिली, क्यों इधर क्यों खड़े हो? क्योंकि उन्होंने 5 कहा बजे बंद हो जाना। 5 बजे बंद हो जाना है, जो जितने बंदे पीछे खड़े हुए हैं 5 बजे का इनको भी बंद पूरा कर नहीं देना होना 5 बजे तक चीनी तो। इनको नहीं मिलनी। इनको तो मेरा 6:30 बजे तक पूरी नहीं होगी। ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही। यानी आप वापस जाओगे? वापस जाना पड़ेगा, जाहिर बात है। भाईजान वापस ही जाएंगे भाई, और क्या करें। और क्या कर ले, अभी वापस ही जाएंगे, इसलिए लंबी लाइन है। 6 बजे जब मार्केटें बंद होती हैं, वहाँ से जब आवाम निकलती है, वहाँ पे कोई कोरोना का कोई असुविधा ख्याल नहीं होता। कोरोना बंदे के का तो अंदर भाईजान कहानी है। मैं आपको बंदे के सही अंदर बंदा बच रहा बताऊं, होता है। सरकारी कागजों में कोरोना के SOPs की बात की जाती है, अमली तौर पे कहीं कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है ऐसा। भाई कुछ भी नहीं है, ये तो इमरान खुद पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है। सबसे बड़ा कोरोना में नाज़रीन, दिस इज द सिचुएशन ऑफ लाहौर। अनफॉर्चुनेटली अगर एक रमजान बाजार की बात की जाए तो चीनी के हवाले से 1, 2, 3, 4 स्टॉल्स लगाए गए, जिसमें 2 स्टॉल्स मर्दों के लिए चल रहे हैं और 1 स्टॉल खवातीन के लिए चल रहा है। और एक कस्टमर को तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर डील किया जा रहा है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतनी बड़ी क्यों, इसके नसीब में चीनी कैसे आएगी। और कैलकुलेशन कर ले, फी रमजान बाजार 3 से 4 पॉइंट्स जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और 9 बजे से लेके 5 बजे तक की कैलकुलेशन कर ले, एक शर्मनाक स्टैट आपके सामने आएगा कि अगर 5 मिनट में एक कस्टमर को डील किया जा रहा है तो तकरीबन कितने लोगों को चीनी दी जा रही है। बाकी सारों के लिए जवाब ही है। वजह क्या है कि जनाब हम तो कहीं और मसरूफ है, हमने तो कुछ और महाज खोले में। अल्लाह सबके लिए आसानी का मामला फरमाए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। फारसी की कहावत है, आब आब कर मोयो बचड़ा, लेकिन यहां पर मामला ऐसा है कि चीनी चीनी कर मोयो बचड़ा, पता नहीं किन्ने घर गाले। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन इस लूट मार का जिम्मेदार है कि आम आवाम जिनके दम से
जिनके वजूद से ये रियासत चलती है, ये निजाम चलता है, ये हुकूमत चलती है, हुकूमत जिसको इनका ममनून व मशकूर होना चाहिए, बदकिस्मती के साथ वो इन हालात में बैठे हुए। ये वोट कास्ट करने नहीं आए, ये चीनी खरीदने के लिए आए हैं। अब मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूं कि ये बाजार गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट यहाँ के इंतजामात को देखती है। सोशल डिस्टेंसिंग एक ऐसा मामला जिसके हवाले से पूरी दुनिया रो रही है। अगर यही मामला तो बाहर होंगे तो सरकारी मुलाजमीन आके चलान करेंगे, बंदे को उठाएंगे, अंदर फेंक देंगे। कुजा कोई ऐसा मामला SOPs के हवाले से इस नाम की चिड़िया कहीं मौजूद नहीं। अब ये आप देखें, 6 फुट का फासला कहा गया है, लेकिन ये तकरीबन 2 फुट का फासला है। मसला क्या है कि हमारे पास जगह की कमी नहीं है, लेकिन हमने अजाब ऐसा छेड़ा हुआ है कि 3 पॉइंट से हमने चीनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है पूरे रमजान बाजार में, और एक बंदा तकरीबन 5 मिनट में डील होता है, क्योंकि उसके शनाख्ती कार्ड नंबर लेना है, उसके अंगूठे पर निशान लगाना है, फिर उसको चीनी का पैकेट पकड़ाना है, और उसके बाद मामला आगे चलेगा। बहरहाल जी, अब मेरे बाएं जानिब आपको दिखाता हूँ, ये खवातीन की कितार है। ये मेरी माएं बहनें हैं जिन्होंने रोजे के साथ, जिनके नसीब में है कि उन्होंने चीनी की कितारों में बैठना है और 2 किलो चीनी लेके जानी है। ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा कितनी देर चला लेंगी, हर दूसरे नहीं तो तीसरे दिन उनको इस कितार में आके बैठना है। ज्यादा मसला हो जाएगा, ज्यादा बचत कर लेंगे तो चौथे दिन तो बैठना ही पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है। इनसे समझना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी क्या हाल है? कितनी देर हो गई खड़े? हमें तकरीबन आधा घंटा हो गया। अभी आधे घंटे से इसी चक्कर में? हाँ जी, उधर चीनी खत्म हो गया, अभी इस लाइन में आए हैं तो वो पीछे वाले आगे आ गए, हम पीछे फिर चले गए, मसले बने में। तो इंतजामिया कहाँ पे? बहन अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, आप सिविल डिफेंस से? क्या हाल है? ये परली तरफ कुर्सियां लगी थी, ये सोशल डिस्टेंस है क्या? ये सोशल डिस्टेंस है? ये समाजी फासला रखा हुआ है आप लोगों ने? उधर बैठे एक के साथ दूसरा तीसरा हम लोग क्या कर सकते? नहीं, कैसे तंग कर रहे हैं? ये जो चेयर्स लगी हुई हैं, ये भी 1-1 फुट के फासले पे लगी हुई। 6 फुट का फासला रखना था। देखो जो चेयर पे बैठे हैं वो बैठे हैं, जो दूसरे हैं वो आगे आ रहे हैं। नहीं, मेरी बात आप नहीं समझ रही ना बहन, कि समाजी फासला तो आप लोगों ने रखवाना है ना, ऐसे ही है ना? तो यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, जारी रखें। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है? माँ जी कितनी देर हो गई इतने बैठे चीनी पर हूँ? नहीं, तुसी किस टाइम में बैठे हो? वो पूछ रहे। 15 मिनट पूरी लाइन से 15 मिनट ही गुजर नहीं है। चलो, शायद कुछ बुजुर्गों माशाल्लाह थोड़ी बारी पहले आ गई, ये अच्छी बात है अगर कोई बुजुर्गों का ध्यान रखता है तो। बहरहाल ये फिर भी एक मुनासिब चीज है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कितनी देर से बहन बैठी है? मैं 2 घंटे हो गए मैं बैठी हुई हूँ चीनी के चक्कर में जी। तो ये 2 किलो चीनी मिलेगी जी, 2 कितने किलो। दिन गुजार लेंगे? कोई बात नहीं, इमरान खान का दौर है, गुजार लेंगे, अच्छी बात कोई होगी। 1-2 दिन निकल जाएंगे। चलो गुजर जाएंगे, रमजान मुबारक है इस वजह से। रमजान मुबारक है, ऐसे मतलब घर में बैठने की जरूरत नहीं, इबादत का मामला नहीं, चीनी की लाइन में बैठे। बस कोई बात नहीं, गरीबी आ गई तो खाना पड़ता है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह आपके लिए कोई गरीबी नहीं बस इमरान खान है। के ये लिए जालिमों दुआ का करती जुल्म है, आपकी गुर्बत नहीं है। ये चीनी आपका बुनियादी हक था, जी। ये किसी जालिम ने अपने पेट में डाली हुई है, इस वजह से मसला है। इमरान खान का बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमें चीनी की मदद की है। अच्छा, बस उनको हमारी दुआएं उन्होंने साथ कौन सी इमदाद की है वैसे? बस चीनी की किया, हर चीज की किया, बस कौन महंगाई सी? मैं बहुत वही है। पूछ रहा हूँ, कौन सी इमदाद की ये है? चीनी की मदद की, खाने पीने की अर्शियों की मदद की है। तो चीनी तो रूटीन में दुकान से मिलती होती है, वो उधर से महंगी, इधर से सस्ती है। वो दुकानें को संभालना किसने है? वो इमरान खान ने संभाले हैं, तो इस बात का उसका शुक्रिया है। जी, मैं उनका बहुत शुक्रिया। यार इमरान खान साहब ऐसे बुरा ना बनाना, आप समेत हर सियासतदान बड़ा खुशकिस्मत है। ये मैं ईमानदारी से ऑन एयर कह रहा हूँ, बगैर डरे, क्योंकि मुझे सिर्फ अल्लाह का डर है। तुसी बहुत खुशकिस्मत लोग हो। सियासतदान जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी नालायक हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अवाम भूल जाती है। खुशकिस्मती है ये। एक बाबा जी है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? तेरी मेहरबानी पुत्र, उनको जल्दी जल्दी दियो तो गरीबां दी माथा बिहार च ना कारोबार है ना कोई गल ना बात। माजरत चाहना बाबा जी, मेरे बस ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੇ। अल्लाह इज्जत दे। ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ कितनी देर हो गई लाइनें लगे? 1.5 घंटा हो ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਣ ਡਿਆ ਸਾ ਆਣ ਡਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗਲਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਬਾਬਾ, ਨੋਸ਼ਰੀ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਨੋਸ਼ਰੀ ਕਰੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਕਲ ਕਰੋ ਕੋਈ ਆ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ सीटों पे बिठाना मसला नहीं है, सोशल डिस्टेंस तो इन सीटों पे भी ਪੈਸੇ ਵੀ सोशल डिस्टेंस तो इधर भी नहीं है। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਜਾ ਦੇ अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? कितनी देर से खड़े हो? 1.5 घंटा हो गया भाई जान। 1.5 घंटा? बारी कदों आनी है? हमारी सर 5-10 मिनट रह गए। 4 मिनट, 4 मिनट बाद बंद हो उन्होंने कहना बंद हो गया, सारे कितने जाएंगे? सब घर जाएंगे और क्या माफिया लोग अपनी जेबें भर रहे हैं। ये गरीब तो उनके लिए कमा रहे हैं, खुद के लिए थोड़ा कमा रहे हैं। कमा के उसको पकड़ा देना, तू उसी ले के जा। लाइन में लग के उसी को पकड़ा रहे हैं। वो खुद ये देखो आप क्या निजाम है, आपको नजर आ रहा है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम रसूल साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र ये 5 बजे बंद हो जाना है? जी सर। रह गए 3 मिनट। जी सर। ये सारे लोग छुट्टी छुट्टी सर, हम क्या कर सकते ये जो हजारों बंदा यहाँ खड़ा है इनको कोई चीनी नहीं मिलेगी। सर हम बात सुने, ये लाइन में कोई भी नहीं है। ये तो मैं वो तो पूछ रहा हम लोग आप सामने कह रहे हैं, कोई भी नहीं है। ना कोई बात है, यहाँ बहस कर रहे हैं सब लोग हमारे साथ। भाई उन्होंने 3 मिनट रह गए, मसला समझे, इनको चीनी नहीं मिलेगी। नहीं सर, ये चीनी नहीं मिलेगी। वजह ये है कि 5 बजे उन्होंने बंद कर जी, दिया। उन्होंने बंद कर दिया। इन्हों दी छुट्टी इनका कैश बंद हो जाएगा 5 बजे। वैसे ये 5:20 तक करते हैं, मतलब 20 मिनट का आवाम को रिलीफ देते हैं ये लोग ना, इंतजामिया अच्छा ये रिलीफ है। मतलब 20 मिनट ज्यादा दे देते हैं ये। वैसे 5 बजे का टाइम है वो। अस्सलाम वालेकुम जी, कितनी देर हो गई सर यहाँ खड़े? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा, कोई बारी नहीं आई। भाईजान कितनी देर हो गई? तकरीबन आधा घंटा। कितनी देर हो गई? आधा घंटा हो गया तक। चाचा जी कितनी देर हो गई? तो बारी कदों आनी है? अब बंद होने लगा है, 2 मिनट रह गए। चले जाएंगे और की कल आके दोबारा लाइन में लगेंगे। हाँ जी, रोज ही इवें ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ वो असल प्रॉब्लम ही ये है कि एक बंदे को भुगताने में तकरीबन 4, 5, 7 मिनट ले लिए जाते हैं ताकि क्राउड पीछे बैठा रहे। अब कोरोना का मौसम है, कोई इंतजामी फेलियर्स इतने शदीद है कि अल्लामान अल हफीज। नाज़रीन ये सिचुएशन है लाहौर की जो आपके सामने रख रहे। चीनी के स्टॉल्स आपको दिखाएं, अभी लोग जाना शुरू हो गए, ख्वातीन उठ के चली गई है। वजह ये है कि 2 मिनट बाकी, 1 मिनट बाकी रह गया, इसके बाद ये स्टॉल बंद होने लगा है। अब लेकिन कुछ लोग अभी भी, मेरा कैमरा अगर पैन करे तो उम्मीद लगाए बैठे कि शायद इनको चीनी नाम की वो जो अजीम कोई शाही चीज है वो इनके नसीब में आ जाएगी। लेकिन बाकी हिम्मत हार के जा चुके में मेरे बाएं जानिब मर्द है और दाएं जानिब खवातीन है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहरहाल नाज़रीन, ये शाही दरवाजा जिसने आटा फराहम कर रहा था पूरे 5 बजे बंद हो गया, लेकिन ख्वातीन, मर्दों की, बच्चों की एक बड़ी तादाद इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है। प्रॉब्लम क्या है कि ये उनका वो नसीब था जो इनको बाजार से आसान कीमतों में मिलना चाहिए था, लेकिन अब चीनी लेनी है जनाब तो 1200-1500 के बंदे की लाइन में बैठना पड़ेगा। आटा लेना है तो यहाँ पे भी कोई 700-800 लोगों की लाइन लग जाया करती है, लेकिन वक्त के साथ ऊपर नीचे ये स्टैट होता रहता है। आपने घी लेना है तो जनाब आपको एक के बाद दूसरे रमजान बाजार में फिरना पड़ेगा, क्योंकि क्यों ना दी शैते है नहीं। अब मसला मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके बावजूद दावे ये कि रिलीफ दिया जा रहा है, ये रिलीफ है या तकलीफ है? अब तकलीफ का दूसरा नाम अगर रिलीफ अंग्रेजी में रख लिया गया है तो ये मुझे समझ नहीं है, शायद कोई डिक्शनरी का फर्क होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कितनी देर से यहाँ पे खड़े हैं? 2 घंटे हो गए बेटा। बारी का इंतजार है? पहले उस लाइन से फिर इधर आ गए। अच्छा जी, आटा नहीं मिले हाथ से पैसे। कितने दिन हो गए इसी तरह ही? इसी तरह नहीं। कल लिख के आज ही आए? नहीं, आज ही आई मैं पहली दफा। अगर आज नहीं मिलता फिर नहीं मिलता। कल आओगे? कल बच्चे ने रोजे रखने ने की करिए, सुबह लेके आई है मैं किसी को 2 किलो आधारा। अल्लाह रहम करे। ते फिर उन्होंने भी देना ते उन्होंने भी वापस कर रहे हैं 2 किलो बिचों। हां जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? यार ये खवातीन और मर्दों के लिए एक ही फरिश्ता यहाँ बैठा हुआ है, क्या करें? अगर आप बंदे बढ़ाएं तो लोग टाइम से आटा लेके घर जा सकते हैं। 2000 थैला सेल हो गया, ये तीसरी गाड़ी लगी। यानी आपने 2000 थैला ना कहे, आपने सिर्फ 2000 लोगों को इस रमजान बाजार से आटा दिया। क्या मतलब इसमें? सिर्फ 2000 लोगों को दिया ना। तीसरी 3000 था ना, तीसरी आप गाड़ी इनको लगी जल्दी जल्दी फारिग करें। और दूसरा यहाँ एक बंदे की ड्यूटी है यार, 3 मिले थी, 2 मिले फारिग हो गए, तीसरी भाई मेरी बात सुने,
آپ کی سپلائی پر کیش پہ ایک ہی بندہ بیٹھا ہے مردوں اور عورتوں کے لیے؟ سپلائی بھی وہ ہے نا, دوسرا بندہ کہاں ہے آپ کے ساتھ کا دوجا کتنے؟ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا, ابھی رش ہے, ہم جانے لگے ہیں بس 5 بجے تک ٹائم ہے. ان ساروں کی چھٹی ہو جائے گی؟ ہم بیٹھے ہوئے تھے 9 بجے سے آئے. بھائی کیا لوگوں کی کمی ہے آپ کے پاس؟ لوگوں کی نہیں کمی یار, اس ٹائم رش کافی ہو جاتا ہے, صبح سے ہم فارغ بیٹھے ہوئے. اچھا جی, بہرحال انتظار کر رہے ہیں, وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو آٹا لینا. جی نواز شریف کی حکومت لین نہیں سی لگ رہی, عمران خان نے لینا لوا یہ 70 کی دہائی میں ہی لگتا ہوتا تھا, 70 کے بعد 2021 میں پاکستان کے معاملات ویسے کر دیے ہوئے, انفارچونیٹ. السلام علیکم جی, آٹے لے کھڑے ہو؟ آٹے لی کھڑے ہیں. چینی لے لیجیے. نہیں چینی نہیں ملی, کیوں؟ بہت ہے, لین بڑی لگی ہے. چینی تو بھی لائن لگی ہے, کیوں ہے نہیں؟ اور آٹے کی بھی لائن ہے, آٹے دی بھی لین ہے, اس نے کھجڑ ہو گئی صبح دے. اللہ کے پناہ, اللہ کی پناہ. بہرحال جی, دس از دا سچویشن. السلام علیکم صابر صاحب, ایک سیکنڈ, کیا حال ہے؟ بھائیجان ٹھہر دیں, بھائیجان ٹھہر دیں, برا نہ منائے, آپ ہمارے بھائی ہیں. آپ کی ڈیوٹی یہاں کیا ہے؟ صابر بھائی ڈیوٹی کیا ہے؟ جو صبح دے بیبیاں آگا پیچھے کر رہے ہیں, کوئی بات منتے ہی نہیں ہے, لین تو وقفہ پا دے نہیں ہے. اچھا, اگا نال رش پیا آٹا سب نے ملتا. کرونا شرونا میں کوئی حساب کتاب کوئی نہیں ہے, کوئی فاصلہ, کوئی سماجی فاصلہ فاصلہ رکھتے ہی نہیں, چکے نے ماں پیچھے کری تھا, بلودی بیبیاں تو اگو ہاتھی پہ دیا. آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ بیبیوں کو دھکے میں ماریں؟ بیبی نے گیا ہی نہیں. آپ نے بھی کہا نا دھکے مار مار میں کر بندیاں لگا, بیبی نے میرے پوچھ تک ہاتھ لایا پوچھ. یا بیبیوں کے ساتھ ڈیوٹی کو خاتون اہلکار بھی ہے؟ ابھی بھی آئی ہیں بیبی بندے. اچھا, سارا دن بیبیاں آئی ہیں ہی نہیں نہیں؟ آئی ہیں بندے. پورا دن آٹا لینے خواتین نہیں ہیں؟ کائی دکھائی لگا کرنا پھر آپ بیبیاں راہ چھوڑ بھائی خواتین کے لیے یہاں پر خواتین اہلکار ہے؟ ٹھیک ہے چلا وہ گیا. کتے ہیگا چی نہیں ہیگی سی چینی کتے؟ چلی گئی. تو چینی والی تو ادھر علیحدہ ہوگی نا, ادھر والا کہاں ہے؟ وہ تو رش بات وہ چلی گئی. اب ڈیوٹی ختم ہو تو گئی, ادھر رش کے ختم ہو گئے, 5 بجے ڈیوٹی ختم ہو گئی. کرونا کا کوئی حساب کتاب نہیں, آپ کو بند کرنے لگے, بند کرنے لگے. 5 بجے ٹائم ان کی چھٹی ساروں کی روٹین کیا کہ انہاں دی چھٹی ہو جاندی 5 بجے جڑے کھڑے نے, 100 بندہ کھڑا, 200 کھڑا, 500 کھڑا, سب دی چھٹی. صبح دے کھڑے یہاں گھٹ ہوئے اڈا کی بنا تو یہ 1 منٹ کے بیٹھے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ تو آپ کی بات صبح ہے. دے کھڑے ہیں, پوچھ رہے آپ کا کوئی بیک اپ نہیں ہوتا, ایک بندہ ڈیوٹی کر رہا ہے, وہ بیٹھ جائے پھر دوسرا کر لے, وہ بیٹھ جائے پھر پہلا کر لے. صبح دے اڈے کلا کلا بندے آ رہے, ایک بندہ ایک بندہ. تو عورتوں میں کوئی بھی نہیں. اور بیبی کلی کاری تکاری آ نام کیا تھا خاتون کا جو ادھر چلی گئی ہیں؟ میں ادھر پتہ کر لیتا ہوں نا چینی کی طرف. تو نہ یہ بھی دس دو. نہیں نام میں نہیں یاد آتا. چلو شکر ہے پھر بھی جھوٹ نہیں بولا, ایک کے بعد دوسرا نہیں بولا, چلیں اس میں بھی عافیت ہو. السلام علیکم چاچا جی, کتنی دیر سے کھڑے ہیں آٹے کے چکر میں؟ تو یہ آٹا تو بھائی حق تھا, ہر بازار گلی میں ملنا چاہیے تھا. یہ 20 تھیلے پڑے ہوئے ہیں, یہ 100 آدمی کھڑا ہوا ہے, یہ 50 بقایا دی چھٹی, چھٹی ہے, کوئی کسی کو دے ہی نہیں رہا. یہ کتنا ٹائم لگاتے ہیں ایک بندہ بٹھایا ہوا ہے تاکہ سپلائی سلو چلے؟ یہ 1 گھنٹے میں ٹینکر ختم ہو جائے, یہ 3 دن میں ختم نہیں ہوگا. جان کے آہستہ آہستہ کرے گا تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب آٹا پڑا ہے. یار کیسا شرمناک معاملہ ہے. مجھے ویسے نا کئی دفعہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی دیوار میں جا کے ٹکر ماروں, انہاں نو کوئی فرق نہیں پہ سکتا. تبدیلی, بہتری, عوام کی محبت, عام آدمی سے محبت, دعوے وعدے کہانیاں, یہ اور عملی نمونہ ایلو, یہ عملی نمونہ ہے. ایک بندہ بٹھایا گیا جناب, اس کا کام خواتین سے بھی لینے پیسے اور مردوں سے بھی لینے, اور ان کو تھیلے والے کر رہے ہیں. اب وہ بندہ صاحب جو ہے, میں اس کی کوئی بدخوئی نہیں کرنا چاہ رہا, میرے پاس بیٹھے ہیں, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مکمل اجازت ہے, آ کے روک سکتے ہیں. میں بلند آواز میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جان کے ٹیکٹیکل انداز میں کیوں کو سلو چلایا جاتا ہے تاکہ آٹا شام 5 بجے سے پہلے ختم نہ ہو. اب اس میں لائن میں کون کتنی دیر لگتا ہے فرق نہیں پڑتا, کسی کو اس سے غرض نہیں. 5 بج گئے, انہوں نے اپنا بند کرنے کی تیاری کر لی ہے. یہ تمام لوگ وہ ہیں جن کے دم سے معاملہ چلتا ہے. بدقسمتی کی بات ہے کہ ان کے لیے یہاں پر آسائش کا معاملہ نہیں ہے. السلام علیکم سر معذرت سے, کتنی دیر ہو گئی آپ کو بازار میں آئے ہوئے؟ تھوڑی دیر ہی. کیا خریدنے آئے ہیں؟ سودا مثال کے طور پر کوئی آٹا چینی؟ آٹا چینی سارا کچھ. چینی ملی نہیں, آٹا ملا نہیں, گھی ملا نہیں. تو ملا گھی؟ جواب ہی جواب ہی ہے. کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ کیسے بہتری آئے گی؟ بہت برا ہو رہا ہے. سڑکوں پہ دیکھتے ہیں وہاں مارداڑ چل رہی ہے, خون کی ہولی چل رہی ہے. ہاں جی. سامان خریدنے کے لیے باہر آتے ہیں تو یہاں پر جناب
जवाब ही है। ਆਏ ਉਹ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। फिर जवाब ही है ना, हर पास जवाब ही है। हाँ जी, होगा क्या? बस बुरा ही हाल होना है। सबको देना पड़ेगा जो सड़कों पर होली खेल रहे हैं। अभी साहब तो हम दे रहे हैं भाई, ऐसा ही है, अब अभी हम दे रहे हैं, इनको भी देना पड़ेगा। अल्लाह सबके लिए आफियत का दरवाजा खोले। नाज़रीन, टीम लाहौर पूछते ने आज का प्रोग्राम खसूसी तौर पर आपके सामने इस नियत के साथ रखा कि कौम जिस मामले में उसको फंसाया और धंसाया जा रहा है वो बुनियादी तौर पर आलू, चीनी, टमाटर, घी, फला है, यानी पेट की आग बुझाने के मामलात में आवाम को कंफ्यूज कर दिया गया है। और दूसरी जानिब क्या हो रहा है, मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा कि या अल्लाह, हबीब तेरा है, उसका तकद्दुस तेरे जिम्मे है। हम कमजोर हैं, हम बिखरे में, हम आपस में ही मुत्तहिद नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम।